Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rafael BB College, Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. Now, in last session, we will discuss about the broad definition of economics, and in earlier videos, we completed various definition of economics given by the different authors. That is welfare definition, scarcity definition, and the growth definition. Now, today in this session, we will continue our chapter, and the topic is what? Nature of economics. Okay, so nature of economics indicate whether economics is a science or economics as an art. Economics is a positive science or economics as a normative science. So, in nature of economics, we mainly learn about the 4 points, that is economics is a science, economics is an art, economics as a positive science, and economics as a normative science. So these 4 points we have to learn one by one. So first is what? Economics is a science. So first of all, what is science? Now science is what? Systematized body of knowledge which is ascertainable by observation and experimentation. Okay, now here ascertainable means what? Ascertainable means which is proved through observation and experimentation. And in science we can everything it is proved, okay, with the help of experimentation and the observation. Now science is a systematic body of knowledge which describe ultimately cause and effect relationship. It always describe the cause and effect relationship between different variable. Now science, okay, now what is cause and effect? cause है ना कारण और उसका इफेक्ट है ना उसका परिणाम. ओके, क्यों हुआ और ये होने से क्या होगा. सो साइंस इज व्हाट? कि साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है which always describe the cause and effect relationship between different variable. Now science becomes systematic or scientific only when relevant facts are collected, then these facts are classified and analyzed, and then law are established which ultimately explain the cause and effect relationship between different variable. So science में always क्या होता है? Certain fact information are collected, then this information are classified, then it is analyzed, and then law are established in order to explain the cause and effect relationship. Okay, take an example, law of demand. Now law of demand क्या बोलता है कि law of demand tell us that कि other things remaining constant, so demand expand with fall in price and demand contract with rise in price. So in this law there are two variable, that is price and demand. Now price, in this law price is what? Independent variable, and demand is what? Dependent variable. It means what? कि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिमांड में इफेक्ट आया, सो प्राइस क्या हुआ? कॉज हुआ, एंड डिमांड क्या हुआ? इफेक्ट हुआ. दैट इज व्हाई यू कैन से कि इकोनॉमिक्स भी क्या है? एक साइंस है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है? सर्टन लॉ एस्टैब्लिश होता है, और वो लॉ अल्टीमेटली क्या एक्सप्लेन करता है? दिस लॉ एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके, यानी कोई भी लॉ में टू वेरिएबल्स होगा और वो वेरिएबल ऑलवेज एक्सप्लेन करेगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. क्यों हुआ और ये होने से क्या इफेक्ट होगा. क्लियर? सो प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज होने से डिमांड में ऊपर क्या इफेक्ट होगा? दैट इज व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड. लाइकवाइज वी लर्न अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, बहुत सारे लॉ हम लोग पढ़ते इकोनॉमिक्स में, एंड ईच एंड एवरी लॉ एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. दैट इज वाई इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है, कि साइंस भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है. वेयर एज इकोनॉमिक्स भी क्या है? एक साइंस है, कि इकोनॉमिक्स में भी सर्टन लॉ एस्टैब्लिश होता है, एंड वो लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट इज व्हाट? कि इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. व्हाट इज आर्ट? आर्ट यानी कला. ओके, सो आर्ट क्या है? आर्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज. इट मीन्स व्हाट? Science lay down certain theories while art put this theory to the practical use. Okay, मैं साइंस तो बोल देता कि ये लॉ है, वो लॉ है, ओके, बट आर्ट क्या बोलता है? ये लॉ को कैसे यूज करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, ये लॉ को कैसे यूज करना है इन ऑर्डर टू फ्रेमिंग सर्टन पॉलिसीज. सो साइंस ओनली थियोरी प्रोवाइड कर देता है,
कि डिमांड थियोरी, सप्लाई थियोरी, कॉस्ट थियोरी, ओके, रेवेन्यू थियोरी, सब थियोरी एक्सप्लेन कर देता है साइंस। बट आर्ट क्या बोलता है, ये थियोरी को कैसे यूज करना है फॉर फ्रेमिंग सर्टेन अप्रोप्रिएट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम। ओके, दैट इज व्हाट आर्ट। यानी आर्ट में क्या बोलता है, कला के कैसे, स्किल्स कि कैसे थियोरी को यूज करना है फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। सो आर्ट इज व्हाट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थियोरी। तो साइंस ले डाउन सर्टेन थियोरी while art put this theory to the practical use. Now take an example. In order to identify and explain the causes of income inequality, यानी इकोनॉमी में जो इनकम का इनइक्वालिटी, दैट इज व्हाट, आवक की असमानता। नाउ ये इनकम इनइक्वालिटी, आवक की असमानता क्यों है, ये कारण फाइंड आउट करना है, कॉज फाइंड आउट करना है। और ये इनकम इनइक्वालिटी होने से सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, यानी कॉज एंड इफेक्ट जो आइडेंटिफाई करना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, साइंस। सो कॉज एंड इफेक्ट जो आइडेंटिफाई करना है ना, इट कम्स अंडर साइंस। बट टू यूज दिस नॉलेज फॉर फ्रेमिंग सर्टन पॉलिसीज which aimed at reduction income inequality is what, art. Okay, so इकोनॉमिस्ट को कौन से टाइप की पॉलिसी बनाना चाहिए जो इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाए, इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाए, तो जो ये पॉलिसी बनाएगा दैट इज व्हाट आर्ट। उसके पास स्किल्स, नॉलेज होगा तो ही वो पॉलिसी बन पाएगा। सो इनकम इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस करना for framing certain policy, that is called as what, art. Clear? So खाली आइडेंटिफाई करना कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सर्टन प्रॉब्लम, तो वो क्या होगा, साइंस थियोरी। बट यूज दिस नॉलेज एंड फ्रेमिंग सर्टन पॉलिसीज विच रिडक्शन इन प्रॉब्लम, विच सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ प्रोफेसर लुइगी कोसा, that is Italian economist. Now, one Italian economist, that is Luigi Cosa, has drawn the difference between science and art. Okay, so science and art के बीच में difference बताया कि science क्या है, कि science एक theoretical body of knowledge है, while art क्या है, art is applied knowledge. It means art does not explain theorem, but it solves general problem. Art is not concerned with the law, but only with the rules and simplify the practice. Okay, it means what, science खाली theory दिखाता है, but art क्या है, practical knowledge है, applied knowledge है। तो science में खाली theory दिखाता है, but art क्या करता है, वो theory को use करके certain problem को solve करता है, that is what, art. Second point, a science teaches us to know, it means only explain the things, यानी science only explain the things, science only lay down the problem. Okay, यानी teach us to know, यानी है means just to explain, while art क्या है, teaches us to do, it means to direct and propose the rules. Okay, so art क्या बोलता है, अब क्या करना है, प्रॉब्लम तो है बट अभी क्या करना है, it means it direct and proposes the rule, that is what, art. Okay, so Luigi Cosa, one Italian economist, has made a difference between science and art, कि science एक theoretical body of knowledge है, whereas art क्या है, practical knowledge और applied knowledge है। साइंस ओनली एक्सप्लेन करता है, बट आर्ट क्या करता है, इट प्रपोज सर्टन रूल्स, डायरेक्ट सर्टन रूल्स इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो लास्टली वी कंक्लूड कि इकोनॉमिक्स इज बोथ, साइंस भी है एंड आर्ट भी है, कि इकोनॉमिक्स क्या है, बोथ, दैट इज साइंस एंड आर्ट। नाउ व्हाई इट इज साइंस, कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies various problems and only explain the cause and effect relationship. यानी इकोनॉमिक्स एक साइंस के, इकोनॉमिक्स में सर्टन प्रॉब्लम डिफाइन होता है एंड एक्सप्लेन करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वेयर एज इकोनॉमिक्स एक आर्ट है which offer certain solution for the problem. So another, we can take another example, कि in order to study the causes of price rise, भाव वधारो, price rise एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Now to study causes of price rise,
and effect on different section of the society which fall under science. खाली प्राइस राइज क्यों होता है और उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, दैट इज व्हाट साइंस. बट फॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन appropriate policy which control price rise is what art. okay, यानी आर्ट से हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन पॉलिसीज फ्रेम करेंगे. यानी प्राइस राइज हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए. सो प्राइस राइज हो रहा है तो क्या करना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए कि प्राइस राइज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोन्स एंड एडवांसेस कम कर देना चाहिए. ओके, लोन्स एंड एडवांसेस के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देना चाहिए. सो पीपल का परचेसिंग पावर कंट्रोल में आ जाएगा. पीपल का पावर परचेसिंग पावर कंट्रोल में आ जाएगा. सो अल्टीमेटली डिमांड कम होगा. डिमांड कम होगा तो प्राइस भी कम हो जाएगा. ओके, तो ये सर्टन पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना है विच कंट्रोल द प्राइस राइज, which offer certain solution for the problem, that is what art. okay, so economics में दोनों स्टडी किया जाता है, प्रॉब्लम भी स्टडी किया जाता है एंड वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना उसके लिए सर्टन पॉलिसीज भी स्टडी किया जाता है. दैट इज व्हाई वी कैन से इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस. नाउ positive science means what? कि positive science may be defined as what? Systematized body of knowledge concerning what is. ये क्या एक्सप्लेन करता है? ओनली क्या है प्रॉब्लम को. दैट इज व्हाट इट कंसर्निंग ओनली व्हाट इज. ओके, सो पॉजिटिव साइंस ओनली explain what it is, हाउ इट वर्क्स एंड वॉट आर इट्स इफेक्ट. यानी पॉजिटिव साइंस खाली क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है कि क्या है, वो किसे इफेक्ट होता है और ये कैसे वर्क करे इकोनॉमी में. यानी व्हाट इट इज, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट. इट मीन्स व्हाट? पॉजिटिव साइंस confine itself as a description of a thing, only describe the things. okay, बट वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है वो क्या होगा, कैसे करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है. इट ओनली डिस्क्राइब द थिंग्स. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर रॉबिन्स, जो हम लोग ने पढ़ लिया, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स कि इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस विच स्टडीज द थिंग्स एज दे आर एंड ओनली एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कि हम लोग ने जो प्रोफेसर रॉबिन्स का डेफिनेशन पढ़ा वो भी क्या बोलता है? इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर्स में विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर रॉबिन्स एक इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है विच स्टडीज द थिंग्स एज दे आर एंड ओनली एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यानी वो खाली प्रॉब्लम को दिखाता है. इकोनॉमी में स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है. ओके, ये क्यों है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, बस वही दिखा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है विच स्टडीज द थिंग्स एज दे आर एंड ओनली एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सो हियर बिजनेस of an economist is just to analyze and explain the economic fact, economic problem, and not to pass any judgment on any matter. In a positive science क्या बोलता है? The things as they are, जो problem है तो है. ओके, तो जो अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव साइंस कि जो इकोनॉमिस्ट है उसका खाली काम क्या है? प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, प्रॉब्लम को खाली आइडेंटिफाई करना है. बट ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, उसके पास उसको कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए वो कोई भी टेक्निक ऑफर नहीं करता है. सो यहां पे इकोनॉमिस्ट का काम क्या हुआ? ओनली एनालाइज द प्रॉब्लम, ओनली एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, बट नॉट टू पास एनी जजमेंट ऑन एनी मैटर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू कि इकोनॉमिक्स इज ओनली कंसर्न विद द scarce, means it is not concerned with the end. And according to this view economics only scarcity of resources को फोकस करेगा, इकोनॉमिक्स एंड को फोकस नहीं करेगा. बिकॉज इकोनॉमी में जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है वो तो रहने वाला है, बट अभी उसके साथ क्या करना चाहिए वो लेके हमारी ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना चाहिए ये पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन नहीं करता है. ओके, सो प्रोफेसर रॉबिन्स भी वही बोलता है कि इकोनॉमी में स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, बट वो स्कैर्स रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट के साथ
किसे मैच करना चाहिए, किसे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसने कहाँ पे भी सॉल्यूशन और टेक्निक ऑफर नहीं किया है. सो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न only with the scarce means and it is not concerned with the end. Okay, so according to the Professor Robbins कि economics is entirely neutral between and, यानी according to the Professor Robbins economics is only concerned with the scarcity of resource, economics is not concerned with the unlimited human wants. That is what it is, entirely neutral between and. क्लियर? सो इन ब्रीफ पॉजिटिव साइंस में क्या होता है कि पॉजिटिव साइंस में ओनली प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, जो है उसको स्टडी करते हैं, बट ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना उसके लिए कोई भी टेक्निक ऑफर नहीं करते. तो नेक्स्ट आएगा, दैट इज व्हाट, इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है. ओके, सो इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव साइंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस? कि नॉर्मेटिव साइंस इज व्हाट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू what ought to be. ought to be यानी अब क्या करना चाहिए, कि what is क्या है, जो है वो तो रहेगा. what ought to be यानी अब क्या करना चाहिए, जो है उसको लेके तो नहीं बैठना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए. सो नॉर्मेटिव साइंस इज व्हाट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू what ought to be. Now according to the modern economist, the economics cannot and should not remain neutral between and. यानी जो आज की मॉडर्न इकोनॉमी है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, वो खाली स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के प्रॉब्लम को लेके बैठा नहीं रहता है, बट वो रिसोर्सेज कम है, वो कैसे यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, उसके ऊपर वो लोग इकोनॉमिस्ट, आज का मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ज्यादा वेटेज देता है. Okay, so according to the normative science, the study of economics aims at not only to know the truth, not only to find out the problem, but also to provide a certain technique for the solution of the various economic problem. Okay, यानी जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम है कि इनकम इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, प्राइस राइज का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तो है, बट ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना चाहिए, उसके लिए सर्टेन टेक्निक्स ऑफर करना है, सर्टेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है. दैट इज व्हाट नॉर्मेटिव साइंस. ओके, सो नॉर्मेटिव साइंस इज दैट कि इट इज नॉट ओनली लाइट बेयरिंग साइंस बट ऑल्सो द फ्रूट बेयरिंग साइंस. इट मीन्स व्हाट, it should not only to find out the truth, but it also state what is conducive to the welfare and it prescribe the remedy which is suitable for the welfare state. Okay, so normative science says that कि प्रॉब्लम क्या है ये तो देखना ही देखना है, बट ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए क्या रेमेडीज है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या टेक्निक्स है, वो ऑफर करना है. सो इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस भी है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉब्लम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए सर्टन पॉलिसीज भी हम लोग ऑफर करते हैं, स्टडी करते हैं. दैट इज वाई इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है. सो हम लोग ने पढ़ा कि इकोनॉमी में बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम होती है इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. क्लियर? कि लॉ ऑफ डिमांड है. ओके, नाउ लॉ ऑफ डिमांड एक पॉजिटिव साइंस हुआ, ओनली एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट ये लॉ ऑफ डिमांड को कैसे यूज करना है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है वो क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट और जो भी मैनेजर्स है वो स्टडी करता है कि डिमांड को एनालाइज करके वो डिसाइड करेगा वेदर टू एक्सपांड द फर्म या वेदर टू कॉन्ट्रैक्ट द फर्म. ओके, सो ये सर्टन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ओके, सो इकोनॉमिक्स क्या है, एक नॉर्मेटिव साइंस भी है. ओके, सो ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ कि व्हाट इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग को 4 पॉइंट पढ़ना है. इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, सॉरी इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, एंड इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. क्लियर? बाय, टेक केयर.